Hello and welcome to Avision Institute. I welcome you all to Avision Institute's YouTube channel. And a very good morning to you all. I hope you all are fine and in good health and you are indoors. Okay, so like every day, we are again here with the daily dose of vocabs based on the Hindu editorials. So, like every day, we will be discussing on 10 new vocabulary words and there will be 3 new idioms and phrases. Okay, so without any delay, let us start our class. So, what will be the points of discussion for today? For today, the points of discussion is going to be vocabulary words based on the Hindu editorials, word meanings and synonyms and antonyms of those words, and we will be doing animals, idioms and phrases. As I told you in our previous class, that in this week we are only going to do animal idioms and phrases. Okay, so this week we are only going to do animal idioms and phrases and not any other kind of phrases. So after this week we will again jump into some other kinds of idioms. Okay, but this week we are only going to do animal idioms and phrases. Okay, so what is our first word today? Our first word for today is stultify. Stultify is itself a verb. Stultify is itself a verb जिसका हिंदी मीनिंग होता है वृथा करना. Okay, in English we can say cause to lose enthusiasm and initiative. So something, a cause which loses enthusiasm or initiative, especially as a result of a restrictive routine. So how it loses initiative or enthusiasm? As a result of a restrictive routine, the enthusiasm or initiative loses. ओके तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स? सिनोनिम्स कैन बी हैम्पर, impede, obstruct, suppress. Antonyms can be consolidate, augment, glorify, exacerbate. And how to use it in a sentence? Let's see. So how can we use it in a sentence? By referencing actual statistics, he was able to stultify his opponent's argument. So by referencing actual statistics means by showing actual statistics, he was able to stultify, means he was able to suppress, or he was able to hamper his opponent's argument. So there was some argument made by any opponent, made by his opponent party. So by showing the actual statistics, he was able to fight his opponent. Okay, so what is our first idiom for today? हमारा आज का फर्स्ट idiom क्या है देख लेते हैं. हमारा आज का फर्स्ट idiom है ब्लैक शीप. तो ये ब्लैक शीप जो है ये एनिमल ईडियम है, हम लोग देख सक रहे हैं. ये एक एनिमल ईडियम है जिसका मीनिंग है अनएक्सेप्टेड ग्रुप मेंबर. तो अनएक्सेप्टेड ग्रुप मेंबर का मतलब कोई ग्रुप होगा, एक ब्लैक शीप का ग्रुप है जिसके बीच में अनएक्सेप्टेड कोई मेंबर है, मतलब उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. ओके, ऐसा कोई ग्रुप का मेंबर. सेंटेंस में इस ईडियम को कैसे यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं. टॉम वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड प्रेफर्ड टू डू थिंग्स ऑन हिज ओन. तो टॉम जो था वो उसके फैमिली का क्या था? ब्लैक शीप था, अनएक्सेप्टेड मेंबर था उसके फैमिली का, और वो प्रेफर करता था अपने आप चीज़ें करना. ओके, मतलब कोई भी अगर अपने ग्रुप से थोड़ा अलग हो तो उसको हम लोग ब्लैक शीप कह सकते हैं. व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा सेकंड वर्ड है निहिलिज्म. निहिलिज्म जो है ये एक नाउन है जिसका मीनिंग है शून्यवाद. इसके इंग्लिश में मीनिंग हम लोग समझ सकते हैं द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस. तो रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, तो रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट करना. इन द बिलीव दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, तो ऐसा सोचना कि लाइफ तो मीनिंगलेस है, इसके चलते हम लोग रिजेक्ट कर दिए रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स को. ओके, दैट इज़ कॉल्ड निहिलिज्म.
इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं रिजेक्शन या फिर रेप्यूडिएशन या फिर डिसबिलीफ या फिर स्केप्टिसिज्म। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं बिलीफ, डिसिप्लिन, रैटिफिकेशन। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। इसका यूजेज देखते हैं निहिलिज्म का। द रेबल्स अर्ज द पीपल टू ग्रैब होल्ड ऑफ निहिलिज्म एंड रिमूव ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑफिस। तो रेबल्स ने अर्ज किया, अर्ज द पीपल को रेबल्स ने अर्ज किया टू ग्रैब होल्ड ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म का पालन करने एवं गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स से थे सबको ऑफिस से बाहर निकाल देने। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा थर्ड वर्ड आज का है बैडिनेज। ओके, बैडिनेज इज आवर थर्ड वर्ड फॉर टुडे, जो कि खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है परिहास। ओके, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ह्यूमरस या फिर विटी कन्वर्सेशन। ह्यूमरस या फिर विटी कन्वर्सेशन इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बैंटर, चैफ, जेस्टिंग, बार्ब या फिर गैम्बिट। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं बुलिंग, क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूमेंट या फिर फाइट। सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट वॉज इन अ गुड मूड एज ही वॉक्ड थ्रू द crowd and made several voters laugh with his witty badinage। तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट वॉज इन गुड मूड, प्रेसिडेंट बहुत अच्छे मूड में थे। ही वॉक्ड थ्रू द क्राउड, क्राउड के बीच में से, भीड़ के बीच में से वो चल के गए। एंड मेड सेवरल वोटर्स लाफ विथ हिज विटी बैडिनेज। तो अपने विटी बैडिनेज मतलब एक ह्यूमरस जोक ऐसे बोल दिए तो क्या हुआ? सारे वोटर्स जो है वो हंसने लगे। ओके, What is our next word for today? Our next word is हमारा फोर्थ वर्ड है मेलो। मेलो जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है मधुर, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, देखिए, स्पेशली ऑफ अ साउंड, फ्लेवर और कलर। ये मेलो भाषा हमेशा जो है कोई साउंड के लिए यूज़ होगा, कोई फ्लेवर के लिए यूज़ होगा या फिर कोई कलर के लिए यूज़ होगा। नाउ प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, कोई सॉफ्ट कलर हो, कोई सॉफ्ट फ्लेवर हो या फिर कोई सॉफ्ट साउंड हो, तभी हम लोग मेलो भाषा का अप्लाई करते हैं। फ्री फ्रॉम हार्शनेस मतलब हार्शनेस जिस पे नहीं है। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डलसेट या फिर यूफोनियस या फिर मेलोडियस या फिर मेलीफ्लस या फिर मेलीफ्लुएंट। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं रगड या फिर एब्रेडिंग, ग्रफ, एब्रेसिव या फिर हार्श। How to use it in a sentence, let's see. His mellow voice and his qualitative speech made everyone applaud him। तो उसके मेलो वॉइस ने और उसके क्वालिटेटिव स्पीच ने सबको उसके लिए अपलॉड करने के लिए बाध्य कर दिया। ओके, हिज मेलो वॉइस मतलब उसके बहुत सॉफ्ट स्मूथ उसके वॉइस ने और उसके क्वालिटेटिव स्पीच ने मतलब उसका स्पीच जो है वो बहुत अच्छा था, क्वालिटी उसका बहुत अच्छा था, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव स्पीच। मेड एवरीवन अपलॉड हिम, तो सब ने उसके लिए ताली बजाया। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट ईडियम फॉर टुडे? हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम क्या है? कैट गॉट योर टंग। तो अगेन ये एक एनिमल इडियम है जिसका मीनिंग होता है सेड व्हेन समवन डजंट स्पीक। तो ये इडियम का उपयोग हम लोग तभी करते हैं जब क्या होता है, कोई बात नहीं करता है। व्हेन समवन डजंट स्पीक, जो कि बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कैसे सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे उपयोग करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कैट गॉट योर टंग, तुमको तुम्हारी क्या बोलती बंद हो गई है? कैट गॉट योर टंग। यू हैवंट सेड अ वर्ड सिंस वी अराइव्ड, हम लोग जब से अराइव किए हैं, जब से आए हैं, तब से तुमने एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है, तो कैट गॉट योर टंग का मीनिंग क्या हुआ? कोई जब बात नहीं करता है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, तब हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, कैट गॉट योर टंग और वॉट। हमारा आज का नेक्स्ट वोकैब है एक्सोरिएट। एक्सोरिएट जो है ये एक वर्ब है।
एक्सोरिएट जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है आलोचना करना या फिर टू क्रिटिसाइज हार्शली एंड यूजुअली पब्लिकली। तो किसी को पब्लिकली या फिर हार्शली क्रिटिसाइज करना मतलब उसके खामियों को निकालना, खामियों को दिखाना, ये होता है क्रिटिसाइज करना। ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं असेल या फिर कैस्टिगेट या फिर लंबास्टे या फिर इम्प्रिकेट। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्लेम, लाउड या फिर प्रेज, ग्लोरीफाई, एडमायर, एक्सल्ट। How to use it in a sentence? Let's see. The stern judge will excoriate the behavior of the repeat offender by sentencing him to 30 years in prison. The stern judge will excoriate the behavior. तो स्टर्न जज क्या करेंगे? एक्सटोरिएट द बिहेवियर मतलब उसके बिहेवियर को एक्सटोरिएट करेंगे। किसके बिहेवियर को? रिपीट ऑफेंडर बाय सेंटेंसिंग हिम। तो एक्सकोरिएट करेंगे कैसे? उसको 30 साल का जेल सज़ा देकर। ओके, ऐसे उसको एक्सकोरिएट करेंगे मतलब ऐसे उसको क्रिटिसाइज करेंगे बहुत हार्शली। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मंडेन। मंडेन जो है खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सांसारिक। फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या है मंडेन का? फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स। इसके सिनोनिम्स जो है, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डाइम या फिर स्टेल या फिर सोबर या फिर हमड्रम या फिर डे टू डे। ओके, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अनयूजुअल, एक्साइटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। द लिस्ट इंक्लूडेड मेनी मंडेन रूटीन टास्क्स। तो लिस्ट में जो है, लिस्ट में बहुत सारे मंडेन रूटीन टास्क्स भी थे। ओके, मंडेन मतलब जो रोज़ करने लायक है या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स जो है हर रोज़ होता है वो होता है मंडेन। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट है खुद एक वर्ब जिसका मीनिंग होता है सुधारना। एमेलियोरेट का मीनिंग होता है सुधारना, टू मेक बेटर। ओके, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अमेंड, बेटर, इम्प्रूव, अपग्रेड। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं वर्सन, रिड्यूस या फिर डिमिनिश। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं एमेलियोरेट को? देख लेते हैं। द एडिटर एमेलियोरेटेड द मैन्युस्क्रिप्ट विथ हिज चेंजेस। तो एडिटर ने क्या किया? मैन्युस्क्रिप्ट को एमेलियोरेट किया विथ हिज चेंजेस, अपने कुछ चेंजेस उसमें डाल दिए। तो एडिटर ने चेंजेस करके स्क्रिप्ट को या मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया? एमेलियोरेट किया, जिसका मीनिंग होता है अच्छा कर दिया और बेटर कर दिया स्क्रिप्ट को। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विर्क। क्विर्क जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है व्यवहार में छल। ठीक है ना, जिसका मीनिंग है व्यवहार में छल, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रेंज हैबिट। कोई अद्भुत हैबिट हो इसको भी हम लोग क्विर्क कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं इरेगुलरिटी या फिर ट्रेट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं नॉर्मैलिटी। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। हिज बिगेस्ट क्विर्क इज़ हिज लव फॉर ओल्ड मार्बल्स। तो उसका जो बिगेस्ट क्विर्क है, सबसे बड़ा क्विर्क है मतलब अद्भुत एक हैबिट है उसका। क्या हैबिट है? कि उसको जो है ओल्ड मार्बल्स बहुत पसंद है, पुराने मार्बल्स। ओके, तो हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। दिस इज अवर थर्ड एंड लास्ट ईडियम फॉर टुडे। व्हाट इज इट? ऑब्वियसली इट इज़ एन एनिमल ईडियम। ये एक एनिमल ईडियम है जो कि है कैटनैप। ओके, कैटनैप का मीनिंग क्या है? नैप का मीनिंग अगर आप सबको पता हो, नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। नैप का मीनिंग, अगर नैप का मीनिंग आपको आता हो तो कैटनैप आप समझ जाओगे कैटनैप का मीनिंग क्या है।
नैप का मीनिंग होता है छोटा छोटा, मतलब थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना या फिर थोड़ी देर के लिए सो जाना, ये है नैप। ऐसा नहीं है कि 7-8 घंटा सो रहे हैं। तो नैप का मीनिंग होता है कि आधा 1 घंटा सो लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ पावर नैप। ओके, मतलब आधा 1 घंटा सोने से हम फ्रेश हो गए, फिर से काम करने लग गए। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अ नैप। ओके, छोटा टाइम पीरियड सोने का उसको कहा जाता है नैप। नाउ what is a cat nap? Okay, what is a cat nap? My father always takes a cat nap after work. तो मेरे पापा काम के बाद में हमेशा एक कैट नैप लेते हैं, मतलब बहुत ही छोटा सा, मतलब थोड़ी देर के लिए वो सो जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिपरकशन। रिपरकशन जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रतिक्रिया। रिपरकशन का मीनिंग है एडजेक्टिव जिसका मीनिंग है प्रतिक्रिया। ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं द इफेक्ट दैट एन एक्शन, इवेंट और डिसीजन हैज़ ऑन समथिंग, स्पेशली अ बैड इफेक्ट। ओके, तो कोई बैड इफेक्ट को हम लोग रिपरकशन कह सकते हैं, तो कोई बैड इफेक्ट हो, ठीक है ना। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं आफ्टर मैथ या फिर कॉन्सिक्वेंस। ओके, बेसिकली रिजल्ट, आफ्टर मैथ मतलब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका आफ्टर मैथ क्या होने वाला है, मतलब इसके बाद में क्या होने वाला है। ओके, कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग भी सेम ही है। एंटोनिम इसके हो सकते हैं लॉयल। ओके, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। एनी डिक्रीज इन टूरिज्म कुड हैव सीरियस रिपरकशंस फॉर द लोकल इकोनॉमी। तो लोकल इकोनॉमी के लिए क्या होगा, एनी डिक्रीज इन टूरिज्म, टूरिज्म में थोड़ा डिक्रीज आएगा। कुड हैव सीरियस रिपरकशंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी टूरिज्म में डिक्रीज आने से सीरियस रिपरकशंस होगा लोकल इकोनॉमी के लिए। सीरियस रिपरकशंस मतलब सीरियस जो है कॉन्सिक्वेंसेस, सीरियस रिजल्ट, सीरियस इफेक्ट्स, सीरियस डैमेजेस आने वाला है लोकल इकोनॉमी में। तो चलिए, हमारा आज का लास्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज़ आवर 10th वर्ड फॉर टुडे? आवर लास्ट वोकैब इज सैंग्विन। सैंग्विन जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आशावादी या फिर ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन एपरेंट बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या कोई ख़राब सिचुएशन है, उसमें भी अगर आप आशावादी है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो उसका मीनिंग होता है सैंग्विन। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, बुलिश, होपफुल या फिर बुऑयंट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं पेसिमिस्टिक या फिर ग्लूमी। तो इसको सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। दे आर लेस सैंग्विन अबाउट द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। तो कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है उसको लेकर ये लोग बहुत ही कम सैंग्विन है, मतलब ये लोग बहुत ही कम होपफुल है, ये लोग बिल्कुल आशा नहीं कर रहे हैं कंपनी के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है उसके ऊपर इन लोगों का बिल्कुल आशा नहीं है। तो उसका मीनिंग हो गया दे आर लेस सैंग्विन अबाउट द कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। ओके, तो ओके गाइज, सो दिस वाज आवर 10 वोकैब्स फॉर टुडे। आज के लिए यही था हमारा 10 वोकैब्स का सेशन और 3 एनिमल ईडियम्स भी किया हम लोगों ने। ये वीक हम लोग पूरा ही एनिमल ईडियम्स करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। Okay guys, so this was all for today. You keep watching our channel and do like the video. Share it with your friends and yeah, don't forget to subscribe to our channel. If you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you get all the updates. Thanks for watching.